Assalamu alaikum wa rahmatullah. So ये हमारी next class है. This is one of the next class that we'll be holding for our internship program. ये class जो है मैं उर्दू में लूँगा और इसको फिर multiple ज़बानों में record कर दिया जाएगा. This class will be in Urdu, in Hindi, and then it will be recorded and will be available in English and other languages as well, because we are utilizing artificial intelligence to do whatever we can in terms of making sure that we provide the best experience, inshallah. So today jo class hai, we will be going deeper into the project as we are going in terms of like understanding the network, the diagrams and all of those things. आज की जो class है उसमें हम लोग मजीद कुछ और चीजें discuss करेंगे. We will go through further things, right? Before we start the class, there are certain things I would like to share. Right? It's a hadith. So before every class, I will read one hadith, right? One of the hadith in Islam. हर क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस पढ़ूंगा. So ये जो हदीस है ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him a path to paradise. यानी कि जो इल्म की तलाश के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जो उसका रास्ता है जन्नत के लिए आसान बना देते हैं. People do not gather in the houses of Allah, reciting the book of Allah and studying it together, but that tranquility will descend upon them, mercy will cover them, angels will surround them, and Allah will mention them to those near him. जो लोग अल्लाह के उसमें gather होते हैं in the houses of Allah, ठीक है ना, जो उसकी किताब पढ़ते हैं, the Holy Quran and the Sunnah, studying it together, ठीक है ना, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी ट्रैंक्विलिटी, अपनी सकीना जो है ना नाजिल फरमाते हैं. मर्सी विल कवर देम, एंजल विल सराउंड देम एंड अल्लाह विल मेंशन देम टू दोस नियर देम. द रीजन मैं ये सब चीजें इसलिए पढ़ता हूँ बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग. सो इन इस्लाम के अंदर आप कोई भी काम करें, ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर जगह फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बताया है कि व्हाटएवर यू डू मेंशन अल्लाह, ठीक है ना, एंड हिज मैसेंजर्स. सो whatever हम जो भी काम करें, चाहे हम खाना खा रहे हों, हम पानी पी रहे हों, हम बेसिकली कुछ भी कर रहे हों, whatever we are doing, पढ़ाई कर रहे हों, काम कर रहे हों, दुकान में हो, like कहीं पर भी हो, like at a shop place or whatever we are buying something, selling something, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, we have to mention Allah. This is the basically the key principle in Islam. And what is the principal name and everything, ये मैं बाद में बताऊंगा. But हमें ये करना चाहिए so that the angels, they surround us and Allah's tranquility and mercy is showered upon us, ताकि अल्लाह ताला की जो सकीना है, अल्लाह ताला जो उसकी जो रहमत की बारिश है वो हमारे हो सके, right? So I will keep on reciting these hadith. ये जो है hadith सही hadith है, which is 2699 grade सही, right? Okay, so Internship में, as we said, we started the project with PPT, people, processes, and technology. We went through the people part. We have covered who is doing what. ठीक है ना? These roles will keep on changing, right? Processes, there's a lot of processes documentation जिसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, and you will start seeing those documentation in the portal, on the documentation portal as well. Procedures, there's a lot of procedures जिसके ऊपर काम हो रहा है, policies and procedures. ये तमाम policies and procedures के ऊपर ये आपसे बनवाई जाएंगी, आपको बनाकर दिखाई जाएंगी, सब कुछ explain किया जाएगा. Technology part, there's a lot of technology components, ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, and इसके ऊपर ये this is not an exhaustive list, ये complete list नहीं है, because ये list change होती रहेगी, इसमें चीजें add subtract होती चली जाएंगी, right? Architectural diagram, this is the architectural diagram that we are following, right? ये हमारा एक architectural diagram है. So अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, and they are asking you कि आपने क्या काम किया, तो आप बता सकते हैं कि at a Nafe cloud, because that's the experience you have to mention, and we will prepare, और हम सब चीज़ आपको तैयार करके देते हैं कि मैंने ये steps किए, मैंने ये steps किए, मैंने ये steps किए, मैं इस पार्ट में इन्वॉल्व था, इस पार्ट में इन्वॉल्व था, राइट? जो भी आप अपना बेसिकली एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको उसके हिसाब से चीज़ें दी जा रही हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप डीसीसी का प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि लेवल 3 का अगर आप पढ़ रहे हैं, लेवल 3 का जो बेसिकली हमारा जो काम है, ठीक है ना, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें आपको
डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिलेगी सारी, ठीक है, और कुछ और काम भी आपको उसके अंदर लेवल 3 में मिल जाएगा। लेवल 3 की सारी वीडियोस मेरी यहाँ पर होंगी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स। मगर जो उसको बनाना है कि वीपीसी को कैसे बनाना है, क्या करना है, दिस इज ऑल इन सिसऑप्स। डेवऑप्स का काम डेवऑप्स, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। डॉक्टर यासिर का काम बेसिकली दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हिच इज डॉक्टर यासिर इज वर्किंग ऑन, तो वो सब अलग है। Osama Anwar is responsible for GRC work, the documentation, and his videos will be available there. MOC is something for us internally. They are the ones who are creating the collaterals and all the things के जो आपको बना के सब चीजें, diagrams वगैरह सब चीजें वो लोग दिखाते हैं. This is mostly for marketing stuff, right? Mohammed Hasnan is for the offensive security part because he covers the offensive security. So to give you an idea, to give you a perspective, VPC में नेक्स्ट आपको वीक में आपको एक वीडियो मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक टू 2 वीक्स में, जिसमें आपको अवेलेबिलिटी जोन्स दिखाए जाएंगे कि व्हाट इज अ वीपीसी, वीपीसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से होता है, कितने इंस्टेंसेस पे मतलब कि आप सबनेट्स किस तरह से चला सकते हैं, कितने अवेलेबिलिटी जोन्स बनाते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है ना बेसिकली वो वीपीसी के अंदर होती है। वीपीसी अगर एसेंशियली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, सो दैट इज द मेन फायरवॉल यू कैन से, ठीक है ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करते हैं, सबनेट्स को, तमाम चीजों को, राइट। सो ये सब चीजें आपको बनाकर सिखाई जाएंगी ओनली इन सिसऑप्स ट्रैक। सिसऑप्स ट्रैक के अंदर आपको ये बनाकर दिखाया जाएगा। अगर आप सिसऑप्स पढ़ रहे हैं देन यू विल बी एबल टू सी। सो इफ यू गो ऑन द वेबसाइट फॉर एग्जांपल, राइट, अगर आप वेबसाइट पे जाएं alnafe.com, ठीक है, देयर यू विल सी कि जो ट्रैक जिसको मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूं इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस सर्टिफिकेट इन एआई इन्फ्यूज, बेसिक एडवांस सर्टिफिकेट इन एआई ऑप्स, दिस इज द ट्रैक। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, वी आर कवरिंग ऑल द की थिंग्स एंड दिस इज एट आरक्यूएफ लेवल 6। ये आरक्यूएफ लेवल 6 के ऊपर कवर्ड है, ठीक है ना, और ये तमाम चीजें कवर कर रहा है। सो एसेंशियली इट इज कवरिंग ऑल द की एरियाज जो है यहां तक, ठीक है, नॉट द सिसऑप्स बट सिसऑप्स, डेवऑप्स एंड एआई, 3 ट्रैक्स वो, एंड डीसीसीएस, ठीक है ना, ये तमाम चीजें वो कवर करेगा आपके लिए। बट इफ यू वांट टू लर्न ऑफेंसिव एज वेल देन यू हैव टू बाय ऑफेंसिव सेपरेटली। सो व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, जो भी लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, you will be able to see that video in those things. So VPC, जैसे मैंने, as I said to you, as I explained to you, VPC जो है वो virtual private cloud है, is a virtual network that closely resembles a traditional network, ठीक है ना, और इसके अंदर subnets, IP addressing, routing, gateway and endpoints, pair connections, traffic mirroring, traffic gateway, VPC flow logs, connections, ये तमाम चीजों के ऊपर we will show it to you. So in the video, if you have acquired sysops, agar aap sysops na track aapne liya hai, you will be able to see the video how to configure these things. But if you're studying DCCS diploma, then you'll be able to see the documentation part, how to document the VPC, you know, हमने VPC को कैसे document किया, हमने क्या किया. So there's a lot of things कि जो हम आपको उसमें दिखाएंगे. Okay, features, उसका demo में we will show you how to configure this. So कैसे लॉग इन करेंगे, VPC को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे सबनेट्स डिजाइन करेंगे, ये तमाम चीजों के उसमें दिखाया जाएगा. Since this project is for PCI DSS, there is a specific elements के जो PCI DSS के अंदर आपने कैसे काम करना है, क्या करना है, वो भी आपको अलग से दिखाया जाएगा. PCI DSS की जब बात होती है तो there's a lot of things के जिसके अंदर VPC by default, VPC is designed for as a stateful inspection, stateful packet inspection firewall. Firewall की different types होती हैं, ठीक है, एक पैकेट को इंस्पेक्ट करना, that is stateful inspection firewall, right? By default VPC और जितनी next generation firewalls हैं, that is how they are designed. So we will be utilizing that ताकि आपको अंदाजा हो कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, क्या कॉन्फ़िगर किया जा रहा है. तमाम जो PCI DSS की जो रिक्वायरमेंट लेवल 1 रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब की सब इसके अंदर हम लोग इसको फॉलो करके आपको दिखा रहे होंगे. सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो आप उसमें देखेंगे. इसी तरीके से ऑफेंसिव पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि VPC की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, हाउ कैन यू अटैक VPC. आमतौर पे AWS के अंदर जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि फ्रॉम एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव
AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अटैक किया जा सकता है, राइट? एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम VPC. तो अगर इसमें कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है, you can exploit that misconfiguration, and that is what we will show it to you, and we will try to explain to you as much as we can to ensure कि आपको उसकी चीजें समझ आए, so that जब आप इंटरव्यू में जाएं तो VPC क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम होता है, क्या काम होता है उसमें, और अगर आपसे पूछें कि भाई उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है तो आप वो भी बता सकेंगे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी. दीज पीपल दे मे चेंज, ठीक है, but the videos, you will get the videos. These are the videos that you will get, and you will get more videos as well, because we will keep on adding new content. Because as I said, ये PCI DSS का प्रोजेक्ट है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो इससे ज्यादा बड़े हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको तमाम चीजों के बारे में पता हो. यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द की थिंग्स. ओके, from the AI perspective, जो AI ops पढ़ रहे हैं, they will be able to see the DevOps side, the SysOps side, and the DCCS side, and the AI side. From the AI side, we will show you कि VPC को generative AI, VPC के लिए क्या क्या काम कर सकती है. For example, अगर आप generative AI को देखते हैं, तो generative AI को use करते हुए आप subnets को किस तरह से effectively design करना है. We will show it to you. IP addressing scheme कैसे होनी चाहिए जिसमें mistakes ना हो हमारी. Generative AI will recommend things to us. Routing tables को कैसे determine करना है. Generative AI will help us do that. Gateways and endpoints को कैसे configure करना चाहिए, क्या होना चाहिए, Generative AI आपको उसमें बताएगी. Pairing connections अगर आपके पास हैं, and there will be pairing connections है जिसमें side to side VPN tunnels हम आपको दिखा रहे होंगे, वो आपको दिखाएगी. ट्रैफिक एंड मॉनिटर जो उसके अंदर है, ट्रैफिक मिररिंग जो है, अगर हमें करनी है कि ट्रैफिक की पूरी कॉपी एक जगह से सिसलॉग सर्वर में जा रही हो और वहां उसको एनालाइज कर रहे हो, तो जेनरेटिव एआई इज केपेबल टू एनालाइज द ट्रैफिक लॉग्स एंड गिव अस रिकमेंडेशंस. सो ये जो काम है जेनरेटिव एआई का, एंड द रीजन आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग इज कि अगर किसी को बाहर जाकर काम करना है, यू नो, जस्ट टुडे वन ऑफ द स्टूडेंट ही सिक्योर्ड अ जॉब from his home country to Germany. So he lives in Pakistan, which is classified as an emerging country, or in other words, developing countries, as they call it, right? India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, all the Middle Eastern countries and the South American countries, ये सारी जो countries हैं, ये developing countries कहलाती हैं, right? A student of ours is going from there to Germany because of this, right? Because of all of these things that they have learned. So ये जो सारी चीजें आप learn करते आ रहे हैं, this will help you, and generative AI will make things easier for you. This is the reason मैं आप सब लोगों को recommend करता हूँ to keep on studying AI, DevOps, SysOps, AI together. If you can afford, if you can't, pick two. If you can't, pick one. अगर नहीं कर सकते 3 लो, अगर से भी नहीं कर सकते 2 लो, से भी नहीं कर सकते 1 लो. Diploma in Cloud Cybersecurity you can study, right? Or then you can keep on building it, upon your foundation. तुम अपनी foundation में build करके काम कर सकते हो, right? But keep on moving forward because West में इन्हीं का सारा काम है, right? One of our students got a job recently, about to get the job at Harvard Medical School, Harvard University in US. एंड मैंने से पूछा कि भाई क्या वहां पर लोगों को क्यूबरनेटीज, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, AWS, ये सब चीजों के बारे में मालूम है सिक्योरिटी? मैंने कहा नो, दे डोंट नो. इनफैक्ट जो इंटरव्यू मुझसे ले रहा था, ही गॉट सरप्राइज कि यार तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है, राइट? सो ही इज अबाउट टू बी सिलेक्टेड फॉर हिज रोल, राइट? एंड आई एम प्रेइंग टू अल्लाह कि उसको सक्सेस मिले, बिकॉज आई विल बी रियली हैप्पी कि जो ना उसको अगर सक्सेस मिलती है, बिकॉज वो फिर बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकेगा, राइट? दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. सो VPN कनेक्शंस, VPC फ्लो लॉग्स आपको ट्रैफिक के बारे में बताती है कि ट्रैफिक जो है ना आपका उसमें पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव बोल रहा हूँ, उसका ट्रैफिक का फ्लो कैसे है, उसमें ना कहाँ पर पैकेट ड्रॉप्स हो रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो आपको ना फ्लो लॉग कैप्चर्स में आपको मिलते हैं, राइट? And if I open it to you, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि limitations, मतलब कि बहुत, I mean, it gives you
सिक्योरिटी की इंसाइट्स आपको मिलती हैं, राइट। ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक, नॉर्थ साउथ ट्रैफिक, तमाम चीज़ों को आप लोग देखकर काफ़ी अंदाज़ा कर सकते हो। यू कैन कीप ऑन गोइंग एट बेसिकली एट अ माइक्रो लेवल कि तमाम चीज़ों के अंदर कहाँ क्या काम हो रहा है, राइट। सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। प्राइवेट सबनेट्स इन तमाम चीज़ों के ऊपर। सो फ्लो रिकॉर्ड्स जो हैं उससे आपको अपने नेटवर्क बिहेवियर के बारे में पता चलता है, बिकॉज नेटवर्क बिहेवियर कैन टेल यू मैनी मैनी थिंग्स, जिससे आपको पता चल सकता है कि यार मेरे पास नेटवर्क्स में हेल्दी ट्रैफिक है या मिलिशियस ट्रैफिक है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको उसमें बताएंगे। As I said, we will keep on providing you as much information as possible, and Dr. Yasir and Dr. Saleha will be the one, and or the AI team I should say will be the person कि जो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। एक्सपोज S3 बकेट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके ऊपर टेक्निक्स के ऊपर बताया जाएगा, कैसे निकाले जाते हैं, क्या किया जाता है। सबनेट्स क्रिएशन, आपको पूरी सबनेट्स क्रिएशन और डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ों के ऊपर बताया जाएगा कि पीसीआई डीएसएस का एक पूरा तरीकेकार है कि जिसके अंदर आपको सेगमेंटेशन कैसे करनी होती है। सो दिस अ वाइट पेपर जो हम आपको देंगे पढ़ने के लिए, एंड यू विल गो थ्रू इट, और इसमें आपको बताया जाएगा कि पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इस पूरे नेटवर्क को कैसे सेगमेंट करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, राइट, जो आपका आर्किटेक्चर डायग्राम है, दिस आर्किटेक्चर डायग्राम जो है ना, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डायग्राम। इसमें आपको तमाम जो सबनेट्स बनाए जा रहे हैं और उनको कार्व आउट किया जा रहा है, वो कैसे किया जाएगा। यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज व्हाट यू विल, इफ यू आर स्टडीइंग, अगर आप पढ़ रहे हैं बेसिकली सिसऑप्स का ट्रैक, देन यू विल बी एबल टू सी कि सबनेट्स क्रिएशन कैसे होती है, राइट, बिकॉज सबनेट्स क्रिएशन तमाम चीजों को हमने उसमें कवर किया हुआ है, राइट। इंटरनेट गेटवे, अगेन ये तमाम चीजें वीपीसी के अंदर हो रही है। सबनेट क्रिएशन, इंटरनेट गेटवे, एंड पॉइंट्स की राउटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग at the VPC level, because everything starts from the VPC level. This is the VPC because the traffic, this is the main thing. Imagine VPC as your router and as your firewall, all mushed together, right? Router, firewall, सारा traffic in and out सारा VPC के थ्रू ही होगा। ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक कहते हैं जो नेटवर्क के अंदर होता है, यहां से यहां, ईस्ट वेस्ट, राइट। ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक का मतलब होता है देयर इज अ सिस्टम हियर, ये सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जो सिस्टम पे जो ट्रैफिक जा रहा है, दिस इज ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक। नॉर्थ साउथ, गोइंग आउट ऑफ द नेटवर्क, कमिंग इनसाइड द नेटवर्क ऑन द इंटरनेट, इसे कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ ट्रैफिक। इनग्रेस एंड ईग्रेस भी कहा जाता है, इनकमिंग, ईग्रेस, आउटगोइंग, राइट। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये सब आपको उसमें बताई जाएंगी, एंड वी विल एक्सप्लेन इट टू यू एज मच एज वी कैन, शोइंग यू कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, कहाँ है, किधर क्लिक करना है, क्या करना है, सो दैट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, ताकि जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ, और जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट था, यू नो, वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो कह रहा था कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब्स, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, यहाँ ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम कि मैंने काम ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरह से किया, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। नाउ you will be able to see, तुम देख सकते हो, if you want to practice the same thing, you have to buy the credits, and that is what alnafe.cloud is coming out, ठीक है, and you will be able to buy the credits and you will be able to replicate the things. Otherwise you can see and you can learn as much as you can, right? But if you really want to basically work on those things, then मतलब कि hands on खुद जाके configure करो, settings देखो, सब कुछ करो, then you can go in and you can basically buy the credits and you will be able to do all of those things. Okay. Next जो चीज इसके अंदर बताई जाएगी आपको, if I go back, ठीक है, वो basically यहाँ पर PCI gateways, PCI DSS की virtualization guidelines, ये एक पूरी guidelines है। There's a lot of guidelines जिसमें हमने आपको बताया कि भाई configure internet gateway according to PCI DSS, किस तरह configure करना है, क्या करना है। रिक्वायरमेंट 1 टॉक्स अबाउट ऑल द थिंग्स, ये सारी जो रिक्वायरमेंट 1 है वो सारी चीजें आपको इसमें बताता है। इसी तरीके से राउट टेबल्स कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे होता है। AWS की बहुत सारी नेटिव सर्विसेज हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप सिर्फ क्लिक करें कि मुझे ये सर्विस चाहिए, इट विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो हियर, अगर मैं यहाँ जाऊँ, देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि जो आपको मिल सकती हैं यहाँ पर, ट्राइंग टू सी container service, compliance service, formation service, right?
there it is, compliance validation. So AWS की एक पूरी compliance validation service है, compliance resources. If you go to compliance program, right? ये different programs हैं दुनिया में globally जो compliance programs हैं, CSA है, we will be designing a network on CSA. इसका मेरा एक पूरा कोर्स है CCSP का जो भी रिलीज होने वाला है. साइबर GRX, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट, साइबर वैडिस, ठीक है ना, ISO 9000, 22301, this is for business continuity and disaster recovery. 27001, we are already doing this right now, indirectly, but we are focused on level 1 right now. So you are seeing all the things for this. Later on, हम आपको ये सारी चीजें कवर करके दिखाएंगे और ये सारी चीजें भी कवर करके दिखाएंगे कि इसका ऑडिट कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अमेरिका के अंदर, अमेरिका का मतलब जब कहा जाए तो उसका मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि कनाडा एंड USA एंड मैक्सिको एज वेल, राइट? सो ये तमाम के ऊपर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, पिपडा जो हो गया या वट एवर द केसेस, अगर आप कनाडा में काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स उन्होंने अलग से दिखाया. कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट, कोई भी कनाडा में नेटवर्क है गवर्नमेंट का तो उसको अलग करने का अलग तरीका है, तो उसमें उन्होंने पूरा तरीका बताया है, दे हैव शोन इट, ठीक है ना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एंड वी विल डिजाइन द नेटवर्क एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड वी विल शो इट टू यू. सो ये जो कंप्लायंस का जो प्रोग्राम है हमारा, जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसमें आपको तमाम यूज केसेस दिखाने का है, ठीक है ना. ये तमाम देखें, इंडिया के अंदर ISO 20000 सर्विस मैनेजमेंट है, ISM मैप है, IRF है, लेकिन ये तमाम रिक्वायरमेंट्स अलग अलग ट्रैक्स की हैं, मगर इन हर ट्रैक्स के अंदर इसकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. सो विल बी शोइंग इट टू यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसी तरह के मिडल ईस्ट एंड यूरोप में चले जाएं तो सऊदीया में और दूसरी जगहों पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यू विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हम इन तमाम चीजों को कवर करते हुए लिखा रहे होंगे. NHS पे हो गया, सो दैट जब आप जाएं, जैसे फिनलैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, जो भी हैं, आपने किसी भी जगह अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, आपने यू विल बी एबल टू शो एंड टेल देम कि भाई मुझे सारा काम आता है बिकॉज आई हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू. सो इफ आई गो बैक टू PCI एंड क्लिक हियर, तो ये मुझे दिखाएगा कि PCI की सर्विसेज कहाँ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज कंप्लाइंट हैं, इन स्कोप कंप्लायंस प्रोग्राम सर्विसेज कौन सी हैं, ये सारी इन स्कोप हैं, ठीक है, जो जो हमारी हैं. और अगर मैं PCI DSS पे जाता हूं तो ये मुझे पूरी दिखाएगा कि हमारी इनकी कौन सी सर्विस पहले से ही सर्टिफाइड है, यानी कि PCI के प्रोग्राम्स को मीट करती है, ये तमाम चीजें. एंड थ्रू आउट द इंटर्नशिप इन डिफरेंट ट्रैक्स आप कर रहे होंगे. जैसे हमारा एक ऑगमेंटेड AI का ट्रैक अलग है, या आर्टिफिशियल बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के, तो उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है. चाइम, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे है, चाइम SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. चाइम इज अ सिमिलर सर्विस टू Zoom जो वो करते हैं, ठीक है ना. कॉग्निटो, कॉम्प्रीहेंड, कनेक्ट, Amazon डिटेक्टिव, ये हमारा फ्रॉड कंट्रोल के लिए, AI के लिए है अलग अलग. सो ये तमाम सर्विसेज हैं जिसको हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा रहे होंगे. सो विल बी शोइंग इट टू यू कि इस पे काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर दिस, व्हाई इज दिस PCI DSS compliant, हाउ, एंड वी विल शो इट टू यू, कॉन्फ़िगर इट एंड शो इट टू यू, ताकि जब आप जाएं किसी भी इंटरव्यू में, यू कैन कलेक्टिवली एक्सप्लेन इट टू देम कि भाई मैंने ये सारा काम किया. ऑफ कोर्स अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं इस लेवल के ऊपर, देन यू कैन से मैंने सारा काम किया एंड इट विल बी मेंशन इन योर रेज्यूमे, और ये चीज आपके रेज्यूमे में मेंशन होगी. लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ट्रैक किया है तो यू कैन जस्ट से आई डिड दिस दिस दिस, मैंने ये काम सारा किया, ठीक है ना, बिकॉज वी विल मेक यू गो थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आपको करके उसमें जाना होगा. सो ये तमाम चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, ठीक है ना, जिस पे हम काम कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको इसकी चीजें मिलना शुरू होंगी, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. वी एंटिसिपेट दिस इज द मंथ ऑफ September, by December this whole project will be over, end of November, mid of December this whole project will be over, and we will take a break and start the new project from last week of December or January 2024, right? But ये project फिर पूरा archive होके वहाँ रखा हुआ होगा. If you want to see it, if you want to experience it, it will be there, the network will be there, you can go in, you can practice, you can learn all of those things, okay? So ये सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं. Just be patient, keep on doing the courses, जो तुम courses करते आ रहे हो, पढ़ते जाओ, काम करते चले जाओ उसके ऊपर, ताकि जब तुम आगे बढ़ो, so that ताकि जब तुम आगे आओ, you are able to understand all the key things
कि तुम्हें सब चीजें आती हो, तुम उस पर काम कर सको, ठीक है ना। आवर गोल इज, देयर इज ओनली वन सिंगुलर गोल। सिंगुलर गोल क्या है? आपको जॉब पे बिठाना, नथिंग एल्स। जैसे मैंने बताया, आज एक लड़की की जो है ना 2 जॉब्स हुई हैं, दे आर बोथ फ्रॉम पाकिस्तान, वन गोइंग टू जर्मनी, द अदर वन इन पाकिस्तान, राइट। सो आप लोगों की भी जॉब्स हो सकती हैं, आप लोग भी जाके पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। इट ऑल कम्स डाउन टू, if you are disciplined and you keep on following the track, even समझ नहीं आ रहा, don't worry about it, keep on doing, keep on asking questions, ठीक है ना। And we will inshallah help you to ensure that you keep on moving forward and you complete the track and you go for the EduCall exam. Now, one of the things that we will offer you is basically EduCall exam. Anyone who passes their EduCall exam, जिसने EduCall का exam pass किया, how to register for the EduCall exam, go and talk to your basically your customer success and they will tell you कि exams के लिए कैसे register होना है. If you register for the EduCall exam, that is where we will tell you कि अगर आपने पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना, then we will provide you job placement. That job placement is through our Al Razak program. ये Al Razak program उनके लिए डिजाइन है कि जो EduCall के लिए basically जाकर उसमें काम करते हैं. So if you want to go on the website, अगर आप level 3 पढ़ रहे हैं, level 4 पढ़ रहे हैं, level 5 पढ़ रहे हैं, level 6 पढ़ रहे हैं, right, whatever you're doing, select the program. कौन सा है? 5 and 6 आने वाला है, so wait for that. 4 ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, level 3 पढ़ रहे हैं, select the program, done, go and pay the fee. If you pay the fee, ठीक है ना, अगर आपने fee pay कर दी, exam pass कर लिया for EduCall level 4, which is RQF level 4, ठीक है, और RQF level 5 और RQF level 6, तो फिर हम आपकी असिस्टेंस करेंगे, जिसमें आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी जॉब प्लेसमेंट के लिए, कि वी विल टॉक टू द क्लाइंट्स, ठीक है ना, प्रिपेयर यू, सेंड यू इन द मार्केट, हम आपको तैयार करके आगे भेजेंगे, एंड वी विल हेल्प यू 30, 60, 90 डेज, कि आपको फर्स्ट 30, 60, 90 डेज में क्या करना है, कैसे करना है. यू नो, वन ऑफ द स्टूडेंट, he secured a job basically recently, right? He secured a job. तो मैंने उसको बताया कि जो ना तुम्हें बेसिकली बेहतरीन है, तुमने वो कर लिया, तो मैंने उसको पूरी चीज रिकॉर्ड करके दी. सो आई रिकॉर्डेड द होल थिंग फॉर हिम, ठीक है, कि उसको कैसे आगे जाकर अपने आप को पेश करना है. सो इफ आई शो इट टू यू, उसकी प्रेजेंटेशन, सो मैंने उसको एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के दी. सो आई बिल्ड अ प्रेजेंटेशन फॉर हिम, 30, 60, 90 डेज. ये उनके लिए है कि इनिशियल डे का प्लान तुम्हारा क्या होगा, कैसे आओगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या एक्सरसाइजेस हैं, क्या तुम्हें करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्या है, यूनिफाइड रिस्क इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसकी पूरी रिकॉर्ड करके, हर चीज करके मैंने उसको भेजी, ताकि वो जाए उस जगह अप्लाई करे जहां पर वो जॉब, बिकॉज ही वाज एबल टू सिक्योर द जॉब. और फिर उसको पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी बना के दिया कि ये भाई तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये दिस इज योर होल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जो हमने इसको बना के दिया. दिस इज ओनली अवेलेबल टू दोस्त, ये उसके लिए अवेलेबल है जो हमारे एग्जाम्स निकालेगा EduCall का. एंड द गुड न्यूज इज, रिसेंटली वी जस्ट गॉट इट फ्रॉम EduCall, इफ यू पे द एग्जामिनेशन फी, अगर तुमने एग्जामिनेशन फी पे की, तुम्हारे पास 2 years हैं टू पास द एग्जाम. आई मीन 2 years. Previously, they said 12 months के बाद, अगर आप 12 months के अंदर एग्जाम पास नहीं किया, you have to pay the examination fee again. This time they told us, no, we can give you 2 years. So within 2 years, you have to pass the exam. So this is a great achievement, ठीक है ना, for the students, कि they can study with us, and every day they can keep on doing the exams. अगर वो करते रहेंगे, they will be able to pass the exams and they will be able to be successful. ठीक है, इफ आई शो यू कि एग्जाम्स कैसे करने, क्या करने हैं, एंड एज आई ऑलरेडी शोड यू कि एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे होना है. सो गो टू alnafe.com, our website. Okay, go on the website and just type in /EduCall, ठीक है ना, EduQual. Click on it. There you can pay your examination fee, right? So अगर तुम ट्रैक ले रहे हो, go for the examination fee. So it's a very simple process, बड़ा simple सा process है. You can do all of those things. Now, for the examination part, it's a very, very simple process. Again, हर बच्चा ये exams दे सकता है.
अगेन उसमें क्या है, इट्स वेरी सिंपल, ये एग्जाम्स है सारे, दीज आर द एग्जाम्स। अगर तुम लेवल 3 कर रहे हो, इंटर्नशिप का लेटर चाहिए, इफ यू नीड द इंटर्नशिप, द रेज्यूमे डेवलपमेंट, ऑल द सर्विसेज, उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस पास करने होंगे, ठीक है। 2100 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, यानी कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स हैं प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस के। अगर आप लेवल 4 कर रहे हो, स्टिल द सेम थिंग, लेवल 5 कर रहे हो, लेवल 6 कर रहे हो, लेवल 7 कर रहे हो, लेवल 5 एंड 6 आने वाला है, लेवल 7 इज ऑल्सो कमिंग, ओके। एजुकॉल के अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो 3000 एग्जाम्स, 3000 एमसीक्यूज, इफ यू पास इट एंड you go through basically an interview presentation and interview. The interview के लिए आपको basically एक scenario दिया जाएगा, develop a diagram for us, a case study, and then present the case study, and from that case study we will ask questions from you कि तुमने, you know, why are you proposing this, why are you proposing that, etc., right? If you can defend your diagram, if you can defend your architecture, you have passed the EduCall certification. So anyone, कोई भी आदमी यहाँ बैठा हुआ है, वो ठीक है अपने घर से बैठकर from the comfort of their house they can do bachelor's, ठीक है ना, within 1 year, so they can save 3 years. अगर 3 से 4 साल का है, 3 to 4 years है, तो 2 से 3 साल वो बचा सकते हैं by just doing level 6 qualification in 3 years, right, in 1 year time. Similarly level 5, similarly level 4, right? There are no basically prerequisites. Anyone can join and anyone can go through those things. Okay, so this was today's class. I will meet you in the next week class as well, and I will give you some more updates. अपनी हमारी वेबसाइट देखते रहिएगा, हमारी वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे we will keep on updating you. जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.